Good evening, dear students. Is my voice audible? Okay. So हमने कल डिस्कस कर रहा था कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. जब दो ड्रग्स मिक्स करते हैं, साइमल्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं, उसका असर क्या होता है. सो yesterday we have seen when two drugs are mixed there is a increased action. जैसे हमने देखा थी एडिटिव इफेक्ट होगा, पोटेंशिएशन इफेक्ट होगा, सिनर्जिक इफेक्ट होगा. तो आज हम देख लेंगे दोनों ड्रग्स मिक्स होने के बाद उसका रिएक्शन और उसका अल्टीमेट इफेक्ट विल बी डिक्रीज्ड. द फाइनल इफेक्ट विल बी डिक्रीज्ड, that we will see today. So combined effect of drugs, there will be a decreased response, that we call as drug antagonism. So there are different types of drug antagonism. The first one will be the physical antagonist. That means इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा इनका एंटागोनिज्म होता है. जैसे already we have discussed the physical antagonism, chemical antagonism in the mechanism of drug action. It's like a revision. So this antagonism is due to by virtue of their physical nature or physical effect. जैसे absorption of, same example we will take here, absorption of alkaloids by the activated charcoal. So ये हो गई physical antagonism. It is simply only due to its physical nature. ठीक है. Then we will discuss the second type of antagonism, that is the chemical antagonism. This is a antagonism by virtue of its chemical nature. जैसे हम देख रहे थे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम इधर ले लेंगे. जैसे एंटासिड्स, हम एंटासिड्स यूज करते हैं अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स में. सो ड्यू टू जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. और अगर देख लेता और एग्जांपल्स भी, चीलेटिंग एजेंट्स, there are different chelating agents. Already we have seen this chelating agents examples also. So these chelating agents will form the complexes with heavy metal ions. A heavy metal complex form, okay, that will form a water soluble complexes that will be removed from the body very easily. So the basic thing is they act as an antagonist by virtue of their chemical nature. Clear? Then third type of antagonism is the physiological antagonism, or we can say a functional antagonism. Physiological antagonism or a functional antagonism. So here if you इसमें देखे तो
दो ड्रग्स डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है एंड फाइनल इफेक्ट विल बी they produce opposite effect. That means one drug will antagonize the other drug's effects by acting at the different receptors. By acting at the different receptors. ये important है. डिफरेंट रिसेप्टर एक ही रिसेप्टर पे काम नहीं करते, दोनों ड्रग अलग अलग रिसेप्टर में काम होके दे विल एंटागोनाइज ईच अदर, बट मेनली दे विल एक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम और एक ही ऑर्गन पे काम करेगा, बल्कि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में बाइंड होके दे विल एंटागोनाइज ईच अदर. जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, अगर सिंपल एग्जांपल मान लो इंसुलिन लिया and we have also taken the glucagon. They have the effect on the blood glucose levels. ठीक है. So insulin will decrease the blood glucose level, whereas glucagon will increase the blood glucose level by acting on different receptors. Okay, so this is the best example for physiological or functional disorder. Both will act on the blood glucose by acting on the different receptors. ये हो गए. अगर हम दूसरा भी अगर ले लिया तो ऑलरेडी पीयूष ने लिखा है सही, एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन. Adrenaline and histamine. Yeah, we'll take another example. Adrenaline and histamine. On bronchial smooth muscles. कहाँ इफेक्ट करेगा? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में इफेक्ट कर रही है दोनों ड्रग. कैसे? अगर एड्रेनालिन देख लिया तो adrenaline by acting on the beta 2 receptors it will cause bronchodilation. Whereas histamine by acting on the H1 receptors they cause the bronchoconstriction. Yes, bronchoconstriction. So this one is एक तो ब्रांको डायलेशन कर रहा है और दूसरा ब्रांको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है. इसका मतलब है दोनों एंटागोनिस्ट ईच अदर by acting on the different receptors. One is acting on the B2 receptors, the other one is acting on the H1 receptors. Clear? So इसलिए sometimes we will use adrenaline, to reverse the bronchospasm, that will be present in the anaphylactic shock. That is present in the mostly anaphylactic shock. This anaphylactic shock is mainly due to the histamine, mainly due to the allergy, or this is mainly due to the histamine. Therefore, the adrenaline will antagonize the bronchospasm that will mainly seen in the anaphylactic shock. Clear? Sir, Sararam पूछ रहे हैं, what is anaphylactic shock? So it is a very severe allergic reaction, very severe
एलर्जिक रिएक्शन, तुरंत इसको हम इलाज करना चाहिए, नहीं तो देर इज ए डेथ चांसेस आल्सो इज देयर. Therefore, immediately we have to treat the patient by giving the adrenaline, by giving the adrenaline. Non adrenaline के खुशबू, you are asking something. Non adrenaline के what's the doubt? Yeah, adrenaline will act on the beta receptors, which causes the bronchodilation. और हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स के काम होके ये ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करता है. ठीक है. ओके देन. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल एंड. सो हम इधर एक ही याद रखना है, एक ही चीज, दो ड्रग्स अलग अलग रिसेप्टर में बाइंड होके that will cause the opposite effects, that will cause the opposite, that means that will antagonize each other, but it should be on the different receptors or sometimes by different mechanisms भी हो सकते हैं, different mechanisms भी हो सकते हैं. clear? yes. तो हम अगर होने के बाद एक एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे इधर. ओके ओके देन. यस. When two different chemicals act on two different receptors and their response is opposite to each other on the same cell, this is called as. मैं पोल लगा रहा हूं. चलो. ज्यादा लोग 75% लोग सही उत्तर दिए हैं. So this is the class leader board. अभिनव, मोइन, प्रमोद आगे है. देखो. सो ये हम एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि दोनों केमिकल्स टू डिफरेंट रिसेप्टर्स में काम कर रहे हैं और वो भी द एक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर. इसका मतलब है दे आर एंटागोनाइजिंग ईच अदर. इसका मतलब हो गया कि दे आर कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. तो सही उत्तर है ऑप्शन ए. ठीक है. या सब लोग आस्किंग सर ए और बी में क्या अंतर है. ये तो केमिकल एंटागोनिज्म में दे आर नॉट एट ऑल एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स. ये तो रिसेप्टर्स में काम ही नहीं करते हैं. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिसेप्टर्स एट ऑल.
केमिकल और फिजिकल एंटागोनिज्म में रिसेप्टर का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वो कुछ भी रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता। हो गया क्लियर अब? यस सर, गॉट इट, यस यस। हाँ, लोई अभी कॉम्पिटिटिव में हम देख लेंगे, अभी तक नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। क्लियर? केमिकल एंटागोनिज्म होगा और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होगा, ये रिसेप्टर्स में कुछ मतलब नहीं है उसका। ड्यू टू देयर केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर सिंपली दे आर एंटागोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ अदर ड्रग्स। तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में रिसेप्टर्स में काम करेगा, वो भी अलग अलग रिसेप्टर्स में काम होगा। ठीक है। मनीष ने पूछ लिया और एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, और एक क्वेश्चन हम दे देंगे, देख लेंगे कितना जन सही उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलो। अली वाह, हम अभी तक कॉम्पिटिटिव डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, चलो। Two drugs having opposite action on different receptors is which type of antagonism? Oh, Hafsa, Pramod, Abhinav. Only 50% have given the right answer. क्यों? क्योंकि मैंने सेम सवाल पूछा हूं, थोड़ा अलग से, इन ए डिफरेंट वे। सेम ही सवाल पूछा हूं। सो आई हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। देखिए, ड्रग्स हैव द ऑपोजिट इफेक्ट which act on the two different receptors। ऑपोजिट इफेक्ट है, और वो भी कैसे हो रहे हैं ऑपोजिट इफेक्ट? दोनों अलग अलग रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद ये ऑपोजिट इफेक्ट शो कर रहा है। ये तो क्लियरली हो गया, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो आंसर है डी ऑप्शन, सही ऑप्शन है डी। क्लियर? सो अगर देख ले तो प्रीवियस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज एकदम सिमिलर क्वेश्चन से, बट थोड़ा डिफरेंट में पूछा हूँ बस। ठीक है। लीड, क्या मनीष पूछे सर लीडर बोर्ड एक बार दिखा दिया, एक बार होने के बाद शायद वो नहीं दिखा दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। देन वी विल मूव टू द अदर टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, दैट इज रिसेप्टर एंटागोनिज्म, और इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म में दो टाइप्स रहता है, एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म रहेगा और एक नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म रहेगा। एक तो कॉम्पिटिटिव हो गया और दूसरा तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। थोड़ा ध्यान से इसको सुन लेना। कॉम्पिटिटिव को, कॉम्पिटिटिव में और दो तरीके हैं, एक रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव है, एक इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव है। जो हम देख रहे हो तो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, और इसको हम इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सली। क्योंकि ये रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है इसलिए तो रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है। कहां पर बाइंड हो जाता है? ऑन द सेम रिसेप्टर, ऑन द
सेम रिसेप्टर, नॉट टू डिफरेंट रिसेप्टर्स, बल्कि एक ही रिसेप्टर पे एगोनिस्ट बाइंड होगा, एंटागोनिस्ट की बाइंड होगा। ठीक है, जब भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगा, the agonist occupancy will be decreased. The agonist, the binding of agonist will be decreased in the presence of competitive antagonist. In the presence of competitive antagonist. क्योंकि रिसेप्टर्स, मान लो एक रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर, this receptor will accommodate only one molecule at a time. एक ही मॉलिक्यूल को वो बाइंड होने देता है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही साथ और एक ही बार नहीं बाइंड होने देते हैं। इसलिए so in the presence of competitive antagonist, the agonist occupancy, the binding of agonist occupancy will be decreased. But as they are in the competition, इसका मतलब है as they are in the competition, हम एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो it can restore the binding of agonist. That means it can restore the agonist occupancy. क्योंकि दोनों कंपटीशन में एक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो दूसरों को निकाल के ये उसी जगह पे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि बोथ ड्रग्स आर इन द कंपटीशन। जिसका भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो जाके दूसरों को रिप्लेस करके ये बाइंड हो जाएगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसलिए फिर से एक बार देख लो, बिकॉज दे आर इन कॉम्पिटिशन, रेजिंग द एगोनिस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन रिस्टोर द एगोनिस्ट ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मतलब बाइंडिंग। सो इसलिए इस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सरमाउंटेबल। दिस वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस एंटागोनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सरमाउंटेबल। सरमाउंटेबल का मतलब है ओवरकम। द general meaning of surmountable is it can overcome. What it can overcome? It can overcome the antagonist from the binding sites. From the binding sites. Clear? हाँ सर, एक बार क्लियर सर, क्लियर सर। हाँ, और एक बार, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में पहला है, ये तो एक ही रिसेप्टर पे काम करेगा, दे एक्ट ऑन द सिंगल रिसेप्टर। जो भी होगा एक ही रिसेप्टर पे काम करेगा। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स, एगोनिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कुछ रेस पे लगा हुआ है। मतलब तुम लोग, या जैसे मान लो इन योर क्लास और द जीपीटी एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव। जो भी ज्यादा पढ़ेगा उन लोगों को अच्छा रैंक मिलेगा। जैसे द सेम वे दोनों कंपटीशन में है, जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, मान लो पहले से यहां एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल बाइंड हो गया। ठीक है, अभी हम एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। क्या होगा बढ़ने के बाद, ये एंटागोनिस्ट जाके सॉरी ये एगोनिस्ट जाके एंटागोनिस्ट को निकाल देगा रिसेप्टर्स के, रिसेप्टर से ये एंटागोनिस्ट को निकाल देके ये बाइंड हो जाएगा, क्योंकि अभी हम एगोनिस्ट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एंटागोनिस्ट खाली रिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं,
इतना ज्यादा टाइट से बाइंड नहीं हो जाता है। इसलिए जब भी एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे ना, एज दे आर reversibly bound, the agonist can easily replace the antagonist from the receptors, thereby it can bind easily. Clear? अभी समझ में आया? माधुरी ने पूछ रहा है, सर व्हाट इज द, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, शी इज आस्किंग सम डाउट, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल? फिजिकल में कुछ नहीं, रिसेप्टर्स का कुछ नहीं अरेंज नहीं होता है, खाली फिजिकल के माध्यम से ये एंटोनिस करते हैं। फिजियोलॉजिकल में that will act through receptors, it will act through receptors, ठीक है, that too on different receptors, that too on दोनों अलग अलग रिसेप्टर्स में ये एक्शन शो हो जाते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल। अब फिजिकल में कुछ रिसेप्टर्स का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म समझ में आया? और स्टिल किसको कोई डाउट है? यस 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 यस, क्लियर क्लियर। इसमें कुछ नहीं है, अगर हमको एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो वो जाके एंटागोनिस्ट को रिप्लेस करता है, रिप्लेस करके वो एगोनिस्ट खुद वहां बाइंड हो जाता है, बस। और एक चीज यह अंडरस्टैंड होने के बाद, एक इंपॉर्टेंट, यू कैन से दिस इज द हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ competitive antagonism. Important characteristic feature of competitive antagonism is, you can see here, there is a shift of agonist log DRC. DRC मतलब dose response curve. There is a shift of agonist log मतलब log DRC to the right, that too without any change in the slope or maximum. ठीक है, मैं समझाता हूं, इस सेंटेंस को मैं समझाता हूं। ये तो नॉर्मल डीआरसी हो गया, एगोनिस्ट का नॉर्मल डीआरसी ये है, ठीक है। नॉर्मल डीआरसी मतलब नॉर्मल डोज रेस्पॉन्स कर्व। So in the presence of antagonist, in the presence of competitive antagonist, this curve, same curve is shifted to the right. Simply this curve is shifted to the right without any change in the any change in the slope or any change in the maximum, any change in the maximum of the curve। ऐसे ही एकदम ऐसे ही कर्व राइट को शिफ्ट हो जाता है, राइट को शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और हॉलमार्क फ्यूचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इट इज मोर पोटेंट, या ये पोटेंट का बात नहीं है, खाली इसमें द कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट साइड। ये भी आप पूछ सकते क्यों राइट साइड, क्योंकि हम इधर एक्स एक्सिस में तो हम डोज दे रहा है, वाई एक्सिस में हम क्या दे रहे हैं, इफेक्ट दे रहा है। तो हम डोज बढ़ लिया तो डोज बढ़ लिया तो द एगोनिस्ट इज रिप्लेसिंग द एंटागोनिस्ट फ्रॉम इट्स रिसेप्टर्स। इसलिए स्लोप में और मैक्सिमम में कुछ नहीं फर्क पड़ता, खाली वो राइट शिफ्ट हो जाता है, खाली राइट शिफ्ट हो जाता है।
डोज नहीं बढ़ाए तो क्या होगा, वो एंटागोनिस्ट उधर बाइंड होगा, एंटागोनिस्ट उधर बाइंड होगा। अगर हम एगोनिस्ट का डोज नहीं बढ़ाए तो एंटागोनिस्ट वहां बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस important feature is there is a shift of agonist log DRC to the right without any change in the slope or maximum. This is the very hallmark feature of competitive antagonism. सर ग्राफ रिपीट प्लीज। ठीक है, हाँ, और एक स्लाइड लेके हम फिर से ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। So this is x axis, this is y axis. On x axis we will take the dose, mainly we will take the log dose. On the y axis we will take the effect, or you can say maximum effect. ये हो गया। पहले हम एगोनिस्ट का डीआरसी निकाले तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। नॉर्मल डीआरसी विल हैव द दिस शेप। ठीक है, दिस इज द ओनली एगोनिस्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओनली एगोनिस्ट। ठीक है, अभी एगोनिस्ट भी है, मान लो there is also a agonist. So now here there is antagonist and especially competitive antagonist. So in the presence of competitive antagonist, the graph is shifted to the right side without any change in the slope or maximum. A maximum or there is no change in the slope. Clear? Sir, why slope does not change? Because the agonist has replaced the antagonist from its receptors. Therefore there is no change in the slope or maximum. जैसा है पहले है, बाद में भी ऐसा होगा, क्योंकि हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद जितना भी एगोनिस्ट है वो एगोनिस्ट जाके एंटागोनिस्ट को रिप्लेस करेगा, अभी वो खुद जाके वहां बैठेगा। इसलिए रिसेप्ट इसलिए ग्राफ में कुछ नहीं चेंज रहेगा। क्लियर? धीरज सर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और एनी क्वेश्चन करेंगे। और किसको कोई डाउट है? खुशबू क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, यस यस। हाँ, अभी हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, या और एक छोटा सा करके हम क्वेश्चन ले लेंगे। जहां तक हम रिवर्सेबल कॉम्पिटिटिव के बारे में डिस्कस किया, अभी सेम है बट ये तो इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है। रिवर्सिबल में क्या होगा, हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो एगोनिस्ट जाके एंटागोनिस्ट को रिप्लेस करता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इधर एंटागोनिस्ट इरिवर्सिबल से बाइंड हो गया, मतलब कोवलेंट बॉन्ड से वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया। तो जितना भी एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना, फिर भी वो रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग से कोवलेंट बॉन्ड से ये टाइट से रिसेप्टर को बाइंड हो गया है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जांपल लेना भूल गए, हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में, तो मैंने भूल गया। एग्जांपल फॉर कॉम्पिटिटिव, दैट इज रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव। सिंपल एग्जांपल है, मान लो
there is ACH and atropine. You know that atropine is a anticholinergic drug. Acetylcholine is a cholinomimetic drug. ठीक है. तो ये एट्रोपिन अभी मस्करनिक रिसेप्टर में बाइंड हो गया. मस्करनिक रिसेप्टर में बाइंड हो गया. अभी हम असिटाइल कोलिन ज्यादा इंक्रीज किया तो ये असिटाइल कोलिन now can replace atropine from the muscarinic receptors. Can replace muscarinic receptors. So this is the very best and simple example to understand the reversible competitive antagonism. ठीक है. acetylcholine and atropine. सर रिवर्सिबल में कौन सा बॉन्ड होगा? बहुत उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा. They are bind very reversibly, maybe hydrophobic, hydrophilic bond or van der Waals bond, but that is not a covalent bond. Therefore, it can be easily reversed from the receptor site. Weak bonds. ठीक है. सर एक्सप्लेन अगेन. अफसा ने पूछ रहा है, फिर एक्सप्लेन अगेन. acetylcholine atropine acts on the muscarinic receptors. आपको तो पता है ये muscarinic receptors जो भी both acetylcholine and atropine. मान लो पहले हम atropine दे दिया है. ये atropine muscarine के रिसेप्टर के बाइंड हो गया है. ठीक है. इसके बाद हम acetylcholine दे रहे हैं. वो भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन. मान लो थोड़ा थोड़ा हम उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहा है. अभी acetylcholine क्या करेगा? ये acetylcholine आके इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो ये आके एट्रोपिन को रिप्लेस करेगा. एट्रोपिन को रिप्लेस करके ये मस्करिन का रिसेप्टर ऊपर जाके बैठेगा. ठीक है. बिकॉज as atropine bound reversibly, the acetylcholine can easily replace the atropine from its receptor. From its receptor. Clear? क्लियर हो गया? यस. हफ्सा एस. यस यस. और मेरे को एक सवाल है. आई विल आस्क क्वेश्चन, वन सिंपल क्वेश्चन. देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं. वैसे भी हम acetylcholine को एज सच यूज नहीं करते. अगर आप देख लिए तो acetylcholine का टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. तो हम इनडायरेक्टली acetylcholine को हम कैसे इंक्रीज करेंगे? वो जाके एट्रोपिन को रिप्लेस करेगा. मेरा क्वेश्चन समझ गया है? बिकॉज वी कैन नॉट गिव द acetyl. हम तो acetylcholine बाहर से नहीं दे सकते हैं. ये अंदर प्रोड्यूस होता है मगर बाहर से नहीं दे सकते. हम acetylcholine को इन द बॉडी कैसे इंक्रीज कर सकता है? कौन सी तरीका है? yes yes, someone has written very good answer. अंकित. या अंकित. यस यस. गुड. प्रभंजन भी सही जवाब दिया है. आपको मालूम है acetylcholine will be metabolized into choline and acetyl CoA. ठीक है. That means metabolism, it will undergo very rapid metabolism by an enzyme acetylcholine esterase, or you can say choline esterase. Simply choline esterase. choline esterase. अभी choline esterase क्या करते हैं? acetylcholine को ब्रेक करता है. मतलब it will metabolize the acetylcholine. Hence the concentration of acetylcholine will be decreased, क्योंकि acetylcholine ब्रेक करता है. Then we will give the drugs that will inhibit the choline esterase. That means choline esterase inhibitors हम देते हैं.
इनहिबिटर्स देते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए, एंटीकोलिनेस्टेरेज एग्जाम्पल्स, लाइक एग्जाम्पल्स फॉर एंटीकोलिनेस्टेरेज। यस यस, मायून महमूद ने लिखा है यस, नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, फिजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन और ज्यादास्टिग्मिन से। तो हम डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन नहीं देते हैं, बल्कि क्या देते हैं, फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन देते हैं, ताकि एसिटाइलकोलिन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। जो भी इंक्रीज एसिटाइलकोलिन है वो जाके मस्करिनिक रिसेप्टर्स में बाइंड हो जाएगा। तो इतना पूरा लिंक्ड कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, समझ गया है। इतना भी बोलने का जरूर नहीं है, फिर भी मेरे को पॉइंट आया ना, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड कर रहा हूं ताकि तुम लोग अच्छी तरह समझ पाए। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल फॉर रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, एसिटाइलकोलिन एंड एट्रिपिन। क्लियर? यस। हम इधर एक क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, एंड्रोफोनियम भी, वो भी सही है। कैन वी टेक वन क्वेश्चन हियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द जीपैट 2012 में पूछा गया था। थोड़ा लिटिल बिट केयरफुल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इधर फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मैं तुम लोगों को थोड़ा वक्त देता हूं ताकि तुम लोग पढ़ सके, समझ सके, उसके बाद मैं पोल लगा दूंगा, ठीक है। अगर तुम लोग अभी तक जो मैंने बोला है, अगर तुम लोग समझ गए तो ये तो इजीली तुम लोग आंसर कर सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पोल लगा देंगे, ठीक है। चलो मैं फोन लगा रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, नॉट इज द ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये चारों में एक फॉल्स है। शेयर लीडर बोर्ड, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए लीडर बोर्ड को। प्रमोद, ऑलिवा, नावेद, मनाश और खुशी, दे स्टूड इन फर्स्ट 5 positions, visible to learners, ठीक है। ओनली 50% हैव गिवन द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम, एक एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर देख लिया तो, they have a affinity for the agonist binding site on the receptor. They have a affinity for the agonist binding site of, affinity का मतलब क्या है, मतलब they can bind to the receptor, they can bind to the receptor, हम इसको affinity बोलते हैं। पहले हम affinity and efficacy के बारे में डिस्कस किया। affinity मतलब बाइंडिंग होना, efficacy मतलब बाइंड होने के बाद एक्टिवेट करना, बाइंड होने के बाद एक्टिवेट करना। तो इसको तो अफिनिट है, इसलिए तो बाइंड हो रहा है, ये तो सही है, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन इज, दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी और
एफिकेसी बोथ आर सेम। इंट्रिंसिक एक्टिविटी हम आईए बोलते हैं शॉर्ट में, आईए। और एफिकेसी, एफिकेस का मतलब क्या है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? बाइंड होने के बाद अगर ये रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाए तो उसी को हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलते हैं और एफिकेसी बोलते हैं। ये तो एंटागोनिस्ट है, तो फॉरगेट अबाउट द कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, यू फॉरगेट अबाउट दिस। एंटागोनिस्ट को हमने पूरा देख लिया, द डेफिनेशंस। एंटागोनिस्ट को इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होता है, इसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है जीरो। वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हम देख लिया है पूरा। जो भी एंटागोनिस्ट हो, वेदर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, इसी का इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो होता है। तो ये भी सही है, दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये हो गई। देन थर्ड, they cause parallel rightward shift of the control dose response curve. Just now we have seen there is a the so there is a right shift in the curve. Just now we have seen A भी सही है, right words, we have to careful whether it is right or left, so this is the right word. Okay, अभी फोर्थ ऑप्शन क्या है? maximum response of the agonist cannot be achieved in their presence by increasing the concentration of the agonist. Maximum response cannot be achieved बोल रहे हैं, maximum response of agonist can be achieved. It can, the answer, the right is it can be achieved. ऐसे मैंने बोला कि एगोनिस्ट का अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो ये जाके एंटागोनिस्ट को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके इसका रिस्पांस ज्यादा बढ़ेगा, इसका रिस्पांस ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सो द फोर्थ ऑप्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। द राइट स्टेटमेंट इज maximum response of the agonist can be achieved in the presence by increasing the agonist concentration. अगर तुम लोगों का एकदम क्लैरिटी है तो ये आंसर इजीली कर सकते हो। शायद अभी सबको समझ में आया होगा। I think by this time everybody have understood this concept very clear. कुछ still कुछ any ambiguity? Yes, 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 yes. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और आगे बढ़े। So this is asked in the GPAT, this is the previous year questions. So ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है तो ये तो इजीली इजी सिंपल क्वेश्चन है तो क्लियर करेंगे। बट ज्यादा लोगों का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, इसलिए ज्यादा लोग इसको थोड़ा रॉन्ग आंसर देने के भी चांस है। चलो, यस, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो सिंपल सा एकदम। सर but confusing, yeah, yes, but confusing cannot, yeah. Then we'll take another question, a simple question है, antagonism between the acetylcholine and atropine। मैं वो लगा रहूंगा। ओह यस, 90% लोग सही उत्तर दे रहे हैं भाई, बढ़िया बढ़िया, मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, यस। सर एक बार लीडर बोर्ड देख लीजिए। ये तो अभी अभी मैंने बोला है, ACH एंड एट्रोपिन
ये क्वेश्चन जी पैट पे नहीं पूछा जाया बट बल्कि किसी एग्जाम में पूछा गया था, या ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको निकाल के आपको सामने पेश कर रहा हूँ. एसिड acetylcholine atropine both will act on the M receptors, that is the muscarinic receptors. So atropine both are comes under competitive antagonism. Both are best examples for competitive antagonism. मतलब अगर मैंने acetylcholine का concentration बढ़ गया तो it will replace the atropine from its receptors. ठीक है. जो भी ज्यादातर जो भी मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ ना वो भी प्रीवियस ईयर का होगा, और नहीं तो और दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ले लिया होगा. ठीक है, आगे बढ़े. और एक क्वेश्चन, ये भी कई दूसरे एग्जाम से लिया हुआ है. अब थोड़ा केयरफुल है, ये ट्रू है, नॉट फॉल्स है. ये फॉल्स नहीं है बल्कि ये ट्रू है, वो थोड़ा आपको ध्यान में लेना चाहिए. इस चारों में एक ही सही आंसर है, बाकी तीन गलत है. तो इसके लिए तो और आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी इनका सही उत्तर दे देंगे. थोड़ा टाइम लेके पढ़िए, मैं 1 मिनट के बाद पोल लगा दूंगा. थोड़ा पढ़ लीजिए, सबको पढ़ने दीजिए. अरे एक सेकेंड. मैं पोल लगा रहा हूँ, चलो. आई विल सी कितने लोग हम. ओ हो, यस, वाह वाह वाह. बस मेरा काम तो आधा आज हो गया, मतलब आई एम डन. Actually, this question is somewhat typical, but most of them have given the right answer. Wonderful, wonderful. Around 80% given the right answer. लीडर पे हलवा, खुशी, विनय, जौहर और पलक. अरे खुशबू इजी है. यस, ठीक है. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है, मैं कर दूंगा. सो इसमें एक ही तो सही उत्तर है. फर्स्ट ले लेंगे, पहला ऑप्शन. एंटागोनिज्म कैनॉट बी completely reversed by increasing the dose of agonist. ये तो रॉन्ग है. अभी अभी मैंने बोला क्या है, एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज किया तो इसको कंप्लीटली रिवर्स हो सकते हैं. वी कैन 100% रिवर्स इफ वी इंक्रीज द एगोनिस्ट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इनमें भी कैनॉट होना नहीं चाहिए, कैन होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. देन सेकंड ऑप्शन देख लेंगे. सर बिकॉज यू एक्सप्लेन सो नाइसली. वाह, थैंक यू सर. बढ़ते बहुत खास हो आप, पढ़ाते बहुत खास हो. थैंक यू, थैंक यू. या सेकंड ऑप्शन ले लेंगे. एगोनिस्ट कैनॉट डिस्प्लेस एंटागोनिस्ट फ्रॉम रिसेप्टर. ये भी गलत है. हम एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो ए एगोनिस्ट वहां जाके रिसेप्टर से एंटागोनिस्ट को निकाल देंगे, वहां से वो खुद जाके वहां बैठेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स द आंसर शुड बी एन एंटागोनिस्ट कैन डिस्प्लेस. दिस इज कैनॉट, यहाँ कैनॉट लिखा हुआ है. ठीक है, ये तो गलत है. नेक्स्ट, agonist and antagonist bind to the same receptor. जब भी हम एंटागोनिज्म का बात करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो भी हो, वो तो
एक ही रिसेप्टर में बाइंड होना चाहिए, एक ही रिसेप्टर में बाइंड होना चाहिए। अगर मान लो ये ये डिफरेंट रिसेप्टर में बाइंड हो गया तो उसको हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म नहीं बोलते, बल्कि उसको फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बोलते हैं। अगर दूसरे रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, सेम रिसेप्टर को बाइंड होने तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, एंड कॉम्पिटिटिव, either it can be a competitive antagonism or can be a non competitive antagonism। तो सही आंसर है सी। डी भी हम पढ़ लेंगे। डोज रेस्पॉन्स कर्व ऑफ द एगोनिस्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट। हाँ, यहां आप थोड़ा ध्यान दीजिए। शिफ्ट टू द लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट, इट शुड बी टू द राइट, नॉट टू द लेफ्ट। हमने ऐसे बोल के भी बताया है हमको, इट शुड बी टू द राइट, नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। मान लो इफ यू नो वेरी thoroughly, then only you can answer this type of questions। Clear? ऑप्शन समझा नहीं आया। मानस मानस ऑप्शन अभी समझ गए ना? मानस मानस कुछ पूछ रहे हैं अभी। ऑप्शंस क्लियर? अब आ गया, ठीक है ठीक है। ये प्रिपरेशन में हम थोड़ा सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमके पास और बहुत वक्त है एग्जाम के लिए। सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव टू thoroughly प्रिपेयर, thoroughly प्रिपेयर। ये तो हमारा काम है आपको प्रिपेयर करवाने लिए। अब आ गया। यस यस। क्लियर? अभी तो क्लियर हो गया, एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म पूरा क्लियर। सर प्लीज गो फास्ट। यस यस। अभी तो हमारा टाइम खत्म होने वाला भी है। सो वी विल डिस्कस द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, लाइक नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। ओके। यस यस। थैंक यू थैंक यू। यस यस। आप हाँ, या और एक मैं बात बोलता हूँ। हाँ, मैं क्लास इसके बाद फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक 1.5 आवर। मेरे को तुम लोगों को 1 घंटे पढ़ाने के लिए कम से कम मैं 4 या 5 घंटे प्रिपेयर हो जाता हूँ, वो भी एकदम स्टैंडर्ड बुक से, जैसे रैंक एंडल, कैटजंग, गुडमैन एंड गिलमैन से पूरा पढ़ के समराइज करके अंडरस्टैंड होके आप लोगों का थोड़ा इजी इजी में समझाता हूँ। अगर डायरेक्टली तुम लोग अगर जाके बुक देख लिया ना, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इतना इतना मोटा मोटा रहेगा वो बुक। तो पूरा बुक मिला के समझा के, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस पूछेगा वो ही 3 बुक से ही पूछेंगे, रैंक एंडेल, कैटजिंग और गुडमैन गिलमैन। जो भी मैं, और एक बात है, जो तीनों मिलाकर पढ़ के और मेरे एक्सपीरियंस के इसके निकाल के हम जो बुक लिखे थे, अनलॉक जीपैट, इसलिए मैं बोलता हूँ अनलॉक, यू बेटर बाय द अनलॉक जीपैट बुक। वेरी बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है। इतना एफर्ट्स होने के बाद भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, अच्छा थोड़ी रैंक मिला था। अगर आपको आपको पता है ना, मेरा रैंक 2006 गेट में 104 आया है। तभी गेट हुआ करता था, अभी तो जी पैट है। तब गेट हुआ करता, वो गेट भी आईआईटी वाले प्रिपेयर करते थे, वो तो एकदम स्टैंडर्ड रहता है। और तभी मेरे को वो ऑल इंडिया 104 रैंक मिला था। उसके बाद मेरा थोड़ा टीचिंग में पैशन हो गया, मैं अभी ये तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो भी हिंदी में। सो सर केडीएम अच्छा नहीं है जीपैट के लिए। केडी क्या? अच्छा केडी त्रिपाठी, केडी त्रिपाठी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है।
शी इज आस्किंग वन डाउट। त्रिपाठी त्रिपाठी से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, हमको खाली क्वेश्चंस पूछा जाता है डायरेक्ट। रैंगेंडेल, गुडमैन एंड गिलमैन एंड